ان تمام چیزوں کی ایک ایک لمحے کی خفیہ ریکارڈنگ ٹیم سریام کے پاس موجود ہے۔ ٹیم سریام کے چھاپے کے نام پر پیسے لینے کی تمام خفیہ ریکارڈنگز بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ان کے کرتوت جاننے کے لیے ایک آدھ ویڈیو کی جھلک دیکھیے، کیونکہ اگر سب ویڈیوز کو آن ایئر کیا تو کم سے کم 10 پروگرام درکار ہوں گے۔ پہلے تو یہ کیسے یہ 70 دیے تھے 30 ہی ہو گئے ہیں، ایک بھائی نے دیے 2 ہو گئے پورے، بس یہ کہ چھاپا لگ جائے گا اور منع ہو جائے گا، ٹائم لگے گا تھوڑا۔ بھائی اب یہ میرا پرسنل میٹر ہے، ٹھیک ہے نا، پرسنل میٹر یہ ہے کہ میری ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں میرا بڑا اچھا سیٹ اپ تھا۔ خود یہ بتاؤ کہ وہ جو جگہ ہے وہ تمہاری وہ میری اپنی جگہ ہے، اور یہ کام پولیس کا بھی نہیں ہے، پولیس کا بھی نہیں ہے، فوڈ والوں کا کام ہے، پولیس تو کبھی بھی نہیں بند کرا سکتی۔ صحیح سے پانی والا کام تو جلدی ہو جائے گا، جلدی نہیں یہ ہو تو جائے گا، مشکل کام نہیں ہے۔ کتنے بس کاؤنٹ کر لیں آپ۔ بھائی یہ میرا میٹر الگ ہے، باقی کر لیں گے۔ کیا سین ہے تمہارا؟ کوئی زمین کا مسئلہ ہے، ہم نے اپنے بندے لگا دیے ہیں، جب بھی تمہیں بلایا کہ ہم نے تمہیں بتا کے دیکھو تمہاری زمین زیادہ ہے، یہ ہم نے ایک بندے کی ریکارڈنگ کیا۔ 4 تو ویسے وہ مانگ رہے ہیں رشوت۔ ہاں پیسے لائے ہو یا پیسے لائے دے دو، اور کیا اس کے لیے آئے ہو؟ کتنے لائے ہو؟ 30 لائے ہوں۔ تم بھی تو کام، تم 5 ایکڑ زمین تمہیں پتا کتنے کی ہے؟ بھائی 30 ہم نے آپ کو کل دیے تھے، 30 ابھی دے رہے ہیں۔ ایک ہی والے کام کرتے ہیں اس میں ہر بات کرنا ہے نا۔ ان لوگوں کی ساری خفیہ ویڈیوز دکھانے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں کیونکہ پکڑے جانے کے بعد انہوں نے سب کچھ خود تسلیم کر لیا، وہ بھی تسلیم کیا جس کی خفیہ ریکارڈنگ ہمارے پاس تھی، اور وہ بھی جو ہم ریکارڈ نہیں کر سکے۔ ان لوگوں کے آنسوؤں اور جذباتیت پر مت جائیے گا، پکڑے جانے پر تو قاتل بھی معافیاں مانگتا ہے اور گڑ گڑا کر روتا ہے۔ ان لوگوں کو تو پکڑے جانے سے پہلے بارہا سمجھایا بھی گیا، اور ان لوگوں کی ضروریات اور آسائشوں کا خیال رکھنے کی بات بار بار اس لیے دہرائی جائے گی، اس لیے نشر کی جائے گی کہ ان کے اس بھونڈے جواز کو بھی ختم کیا جا سکے کہ انہیں اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کرپشن کرنے کی ضرورت پڑی۔ سب سے پہلے ٹیم سریام کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ساجد نواز کی اعترافی گفتگو سنیے۔ یاد رہے ساجد اور وسیم کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے پہلا مقدمہ میں نے یعنی اقرار الحسن نے خود اپنی مدعیت میں درج کروا کے انہیں گرفتار کروایا۔ کتنے شوز میں پیسے لیے آپ نے؟ اور میں گنوانا شروع کر دوں گا ایک ایک کر کے، بتائیے گا۔ ایک تو بیسک جو تھا ہم نے پہلے یہ بتائیں کہ دھندا شروع کب سے کیا، کیا ہوا تھا، ایسا کیا ہوا تھا، ذہن میں کیا چیز تھی، کیا اپنے آپ کو آپ نے سمجھایا، کیا جواز دیا؟ پیسوں کی کمی وہ نہیں ہوتی تھی، پوری نہیں ہوتی تھی۔ پیدا کرنے والی ذات کی قسم ہے، ان لوگوں کی بچیوں کی شادی، سکول فیس کے اخراجات، گھومنے پھرنے کے لیے رقم اور گھروں کے کرائے اپنی جیب سے ادا کرنے کا ذکر میں اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ آپ سب کو یہ بتانا مقصود ہے کہ میں اور ARY ہر ضرورت میں فائنینشلی اور مورلی ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے بدترین کرپشن کی، سو یہ اپنی ضروریات کو جواز بنا کر ہمیں اور خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب میری بات سنیں، کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مجھے کسی چیز کے لیے کہا نہیں اور میں کھڑا نہیں ہوں آپ کے ساتھ؟ آپ نے میری بیٹی کی شادی کے لیے بھی کیا، آپ لوگوں کے ٹرپ کا خاندان، کسی کے ہاسپٹلائزیشن کا کوئی مسئلہ، آپ اپنے ہاتھوں سے ہر مہینے کتنے پیسے دیتے تھے لوگوں کو جو میں آپ کو ٹرانسفر کرتا تھا؟ تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے۔ ایک تو وہ ایوریج ہر مہینے جاتا تھا نا، آپریشن، کسی کی شادی یا جہیز کا سامان آپ کا پورا ریکارڈ ہے نا، مجھے تصویریں بھیجتے تھے کہ واف یہ جہیز لے لیا، آپ کے نے پیسے دیے تھے۔ آپ جس دن پکڑے گئے ہیں اس دن کتنے پیسے آپ نے، میں نے جو آپ کو دیے اور آپ نے لوگوں میں تقسیم کیے ہیں؟ وہ آپ نے ایک
50,000 रुपये दिए थे एक के, और एक के 20 एक दिन में 70,000 रुपये आपने दिए लोगों को? एक की शादी थी, एक के घर के किराए का मामला था। तो आप खुद भी जब मुझे कहते थे तो मैं खड़ा नहीं होता आप लोगों के साथ। पैसे की कब मैंने आपको प्रॉब्लम आने दी, किसी तकलीफ, लेकिन वो किसी आपसे इलाज में, किसी शादी नहीं, में? आपने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, बस वो आपसे मांगने में बस वो होता था कि नहीं। साजिद का ये कहना कि आप हमारा ख्याल तो रखते थे लेकिन हमें आपसे खुद मांगते हुए अच्छा नहीं लगता था, ये बात एक मजाक है। मतलब आप जिस्म फरोशी वाले गेस्ट हाउसेस से पैसे मांग सकते हैं, सरेआम के नाम पर हर ऐरे गैरे से पैसे ले सकते हैं, मुझसे अपनी ज़रूरत के लिए कहते हुए आपको शर्म आती थी? शर्म की बात है। तो आपने सोचा कि 2 नंबरी शुरू कर देनी चाहिए, पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। तो ये तो हम हर बंदे को जिसको भी हम पकड़ते थे आप और मैं मिलके, हमारे जो प्रोड्यूसर थे वसीम साहब, सारे जो भी माशाल्लाह आपके साथ अंदर हैं, तो वो भी तो यही कहता था। पुलिस वालों के हवाले से जब हम करते थे तो ये बताते थे कि जी हमारी तनख्वाह कम है या हमारे अखराजात ज़्यादा हैं या हमें तफ्तीश के पैसे भी खुद, तो वो तो फिर तो वो भी ठीक थे सारे के सारे। जितने लोग हमने पकड़े अब तक पिछले 8 साल में, हमने ज़्यादती की फिर तो उनको पकड़ के? नहीं, ज़्यादती तो नहीं की, हमारा काम था लोगों को एक्सपोज करना। आज हम खुद एक्सपोज हो गए। मेरी तकलीफ का अंदाज़ा है आपको? बहुत तकलीफ। रहूँगा, साथ खड़ा रहूँगा उनके, क्या करूँगा? अब आपका क्या करूँ मैं? सोचना था ना, मैंने कितनी बार समझाया था? बहुत बड़ी मिस्टेक, कितनी बार समझाया? बहुत बड़ी मिस्टेक। क्या लगता था पकड़े नहीं जाएंगे यार? क्यों नहीं पकड़े? जब कौन लोग थे आप? चोरी नहीं छुपती गिरा भाई, चोरी नहीं छुपती, चोरी नहीं छुपती। आपने बहुत कोऑपरेट किया। हम इस सिचुएशन पे आके खड़े हुए, हमने यही साथ ही मेरे वसीम, हम यही बोल रहे थे कि नहीं यार हमने बहुत गलत किया। हम तो मैं आपको ना, जब मैं घर पे बुलाता था, मैं आपको मीटिंग करता था, अच्छा मैं पूरी आपको कहता नहीं यार आज से बस आप लोग ठीक हो जाए, बस नए सिरे से करेंगे काम, बस कल से ठीक है, बड़े जज्बे के साथ उठते थे हम। फिर मैं अगले दिन फ़ोन करता था तो मैं कहता था यार ठीक हुए कुछ, इन्होंने कोई अपनी बातें की बस मेरे सही से आप काम करना है। हालांकि मुझे कहते थे नहीं अभी तो ये पैसे पकड़ के फैला देगा क्या? मैं रात को ये बैठ के सोच रहा था यार ये हुआ बहुत गलत हुआ, शायद अल्लाह ताला कोई ऐसा चांस है पैर पकड़ के भी माफ़ी मांगनी पड़े, मांग लूँगा, लेकिन काम ईमानदारी से करूँगा, ये मैंने सोचा था। कौन मौका देगा आपको? कोई नहीं देगा, लेकिन सोचा था, खौफ आया। अल्लाह से नौकरी कहाँ मिलेगी आपको? आप जैसा इंसान नहीं मिलेगा। बस मुझे तो नंगा कर दिया आपने सब लोगों के सामने। चलो बस ये समझ के कि जो किया है, और ये देखो इधर ज़मीन पे पैसे उठाते हैं ना साजिद भाई, मेरी बेटियां बीमार है, मुझे प्रोटेक्ट नहीं चाहिए। अल्लाह मालिक है उनका, जहाँ अल्लाह ताला ने इतना बड़ा किया उनको ठीक नहीं। मैं ये करना सर फेस करे ना सामने, नहीं कर सकता। लोग कहेंगे अपने बंदे का चेहरा दिखाया नहीं, दूसरों की पूरी दुनिया को बेनकाब करते थे। मैं बस हम ये जज्बाती मनाजिर इसलिए नशर कर रहे हैं कि इनके आंसुओं में इनके गुनाह का एतराफ़ है। हम इनके लिए ना तो खुद कोई हमदर्दी रखते हैं, ना ये चाहते हैं कि आप इनके लिए कोई नरम गोशा रखें। सभी मुजरिम पकड़े जाने के बाद रोते हैं, और इन्हें तो पकड़े जाने से पहले कई बार मुतनब्बह भी किया गया था। मुजरिमों के रोने का हरगिज ये मतलब नहीं कि उन्हें माफ कर दिया जाए, और इंशाअल्लाह ये लोग भी अपने किए की सजा भुगते। यार वो माजूर बंदा जिसकी बीवी हाथ जोड़ के रो पड़ी थी कि मुझे सीढ़ियों के बगैर वाला घर ले दे, मैं नहीं, मेरा यहाँ नहीं चढ़ सकता सीढ़ियाँ, उसके पैसे लेने पहुंचे हुए थे आप लोग? नहीं, उसका वसीम भाई से किसी ने कांटेक्ट किया था खातून ने, तो उसको तो ओवरऑल वो देख रहे थे। आपके लिए नहीं, मेरे इल्म में था। हसीब की बीवी के अकाउंट में पैसे आने थे? हाँ, ये मेरे इल्म में था। हसीब प्रॉपर्टी एजेंट बना हुआ था? हाँ बिल्कुल मेरे इल्म में। सारी रिकॉर्डिंग है। शहजाद के नाम पे पैसे लेने के लिए भेजा ना आपने मलिक को फारिम बर्नी ट्रस्ट में रिकॉर्डिंग करने के लिए बच्चों की, वो था आपके नॉलेज में? हाँ, वो था मेरे नॉलेज। वो भी पैसे मंगवाने थे डोनर से? वो उससे भी वसीम भाई कांटेक्ट में, मगर मंगवाने थे ना आपके नॉलेज में? थे, मंगवाने थे, बिल्कुल थे मेरे।
कहाँ कहाँ मोटा मोटा क्या जहन में आता है? मटियारी में कितने पैसे लिए उससे, जो डिप्टी कमिश्नर का था, उससे डीसी का? मेरे ख्याल आई थिंक 4.5 लाख। 4.5 लाख लिया। और उसके अलावा फिर वो कोई भी आता था 50,000, 1 लाख, फिर उसमें एक जो रिकॉर्डिंग जहाँ की वो तो सारी 70,000, 30,000, लाख रुपए वाली। बस भी। कितने होंगे पैसे तकरीबन साल में, कितने बना दिए? साल नहीं, मैं 6 8 भाई 8-9 लाख रुपए बना 8-9 दिए, यही सोच के कि यार मैं हुआ घर कुछ बना उससे? लूँ। कुछ भी नहीं। कोई हराम के पैसों ने कोई ज़िंदगी में तब्दीली, नहीं, बच्चियों का कुछ इलाज हो नहीं। गया, वो आपकी अपनी कोई ज़िंदगी समझ गई? नहीं। काशिफ से पैसे लेने के लिए भिजवाया था KMC वाले से, काशिफ, हाँ काशिफ को भी लिए पैसे नहीं लिए? KMC वाला, वो काशिफ रजा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन, हाँ उससे मेरे ख्याल वो सदफ ने फिर आपको आगाह किया था ना कि ना भेजें, उसका कोई मीडिया वाला। हाँ सदर के पास फ़ोन आया था कि ये आप लोग क्या कर रहे हो। कितने पैसे लेने थे उससे अगर लेते तो? डील क्या हुई थी उससे? डील उससे वसीम भाई कॉन्ट्रैक्ट में थे। रहमानी कितने पैसे महीने के ला के देता था आपको? 40, 50, 60 तक दिए। गेस्ट हाउस वालों से उठाता था पैसे, जो ये प्रोस्टिट्यूशन वाले हैं और सारे। इतना गिर सकते हैं हम लोग साजिद भाई आंखें कि बंद हो गई थी। प्रोस्टिट्यूशन के पैसे उठा रहे हैं? आंखें बंद हो गई थी। और के बाद जो आपके जहन में, मेरे आप जहन में पूछें, आ रहा हो, आप पूछें। आपको खुद पता हो ना। देखिए, पर मैंने पूछने पे मेरे बताया तो आपने क्या नदामत हुई आपको? देखिए ना, कंडीशन ऐसी है, दिमाग सुने, आप सामने खड़े हुए माइक, जो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था ऐसा। साजिद भाई, कभी जहाज़ में सफ़र करने का सोच सकते थे आप और मैं? नहीं, कभी नहीं सोचा। कभी मैं बिजनेस क्लास में तसव्वुर कर सकता था ट्रैवल करने का? हम 5 स्टार होटलों में रुकते थे, जो सब खाना यार चाहते थे खा सकते थे, सब बजट यार हमारे हाथ में होता था सरेआम का। कोई ऐसी चीज़ जो सरेआम के लिए ना मिलती हुई इदारे की तरफ से। गाड़ियाँ घर से पिक करती थी, सब हमारी औकात थी ये? नहीं, हमारी औकात नहीं थी, सब हमें दिया, एयरवे ने दिया। फिर क्या मसला था? बस नहीं पता ना बॉस, ये कुछ आप किसी भी चीज़ के पैसे उठा लो यार, मतलब यार बेवाओं के, यतीमों के, माजूरों के पैसों पे अगर आ गए हो और प्रोस्टिट्यूशन के पैसे उठवाना शुरू कर दिए हैं, की लाठी बड़ी बेवा। नीयत अगर ये होती कि यार वो 35 लाख आएगा, हम ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट में डलवाएंगे, इसको घर लेके देंगे इस फैमिली को, तो कैसे रंग लगते हैं? किसी की बददुआ तो लगी होगी ना? लेकिन बिल्कुल लगी। सच में अल्लाह को हज़ार जान के बताना, आप किसी इन्फ्लुएंस में आप ये बातें कर रहे हैं? नहीं, बस किसी अफसोस- दबाव पे? नहीं, अफसोस है, ज़मीर का दबाव है? दबाव है। क्या सोचा पिछले 1-2 दिन में आपने? मैंने बहुत बड़ी गलती की। अभी मैंने, आप जब बात कर रहे थे, मेरा दिल हिला, आपकी आंखें एकदम लाल हो गई थी बात करते हुए। कुछ जाती तो नहीं हो रही आपके साथ? और अगर हो रही है तो हमने 8 साल में सबके साथ जाती की है, इसका मतलब? नहीं, कोई ज्यादती नहीं, मतलब एक कानूनी कार्रवाई हो के अगर तो आप समझते हैं कि जाती, तो इसका मतलब हम फिर 8 साल से जाती कर रहे थे लोगों के साथ। नहीं, तो अगर हम उनको जेन्युइन पकड़ रहे थे, सही पकड़ रहे थे, उसी तरह से हमने, आप खुद पकड़े गए आज, तो ठीक हुआ इसका मतलब? अच्छा, नवाब का और दूसरे का क्या नाम था? नवीद। क्या रोल था? आपने फ़ोन करके मना किया उनको? जिस दिन हमने डिसाइड किया कि आप, मुझे किन की शिकायतें आ रही हैं, मैंने कहा इनको पकड़ें, फिर इनके खिलाफ सबूत रिकॉर्ड करें, आपने फ़ोन किया उनको, मना किया कि बेटा अभी 1-आध महीना रुक जाओ, नहीं, खामोशी इख्तियार करो? मैंने ये नहीं हाँ। कहा कि 1 महीना रुक जाओ, मैंने उनको तंबीह कर दी थी कि इस तरीके का होने वाला है। तो आप उनसे कुछ लेते थे? कभी कोई इन्वॉल्वमेंट रही? एक दफ़ा नवीद से आई थिंक 10,000 रुपये लिए थे बस। और किस चीज़ की? वो भी कोई मेरे ख्याल केस के हवाले से किया था, वहाँ से उसने लिए थे पैसे बस। बाकी तो इसको public इस्लामाबाद में से- भेज के कुछ पैसे मंगवाए थे नवीद को? इस्लामाबाद गया था ये एक खातून से, मेरे ख्याल से इसने 50,000 लिए थे। अली, जो हमने अबू बकर को बाज़ियाब करवाया था इस्लामाबाद से, आपने मुझे मैसेज भी किया पहले दिन, मुझे सारा पता था कि क्या हो रहा है, ठीक है, कि वो आ रहा है उसका शौहर, मैं फिर दूसरी बार भी आया, फिर आप लोग भी मिलने गए उसको? नहीं, हम नहीं गए मिलने, वो 2 मरतबा ऑफिस आया। आया। क्या इरादा था? क्या मांगी? 5 लाख मांग ली थी नहीं, आपने? उसमें जो बातचीत कर रहे थे वो वसीम भाई कर रहे थे, लेकिन आप भी फिर ना उसमें ले। मैंने मना कर दिया था कि नहीं ले। क्यों? आपको लगता था ये पकड़वा देगा? अच्छा, वो आपने अपना जो यूट्यूब चैनल बनाया था, जो लड़की होस्ट थी उसकी, रॉयल तेस, उसमें किसी को पकड़ के लिए पैसे?
اس پہ ایک دفعہ لیے تھے شاید. کتنے؟ فسیم بھائی نے لیا تھا 45 یا 50 ہزار لیے تھے. ہاں جب ہم نے کی بیٹی کو اس کے شوہر کی اسے قید سے آزاد کروایا تھا تو ایس ایچ او اس کے ساتھ آپ نے آدھے کیے پیسے؟ ایس ایچ او نے 10,000 روپے دیے تھے. اور کس چیز کے تھے؟ یار سوچو ساجد نواز ٹیم سر عام ایس ایچ او پھر 10,000 روپے لے رہے ہیں.